بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، نے قرآن پاک کو شفا کر کے بھیجا، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک شفا ہے، روحانی امراض کی بھی شفا قرآن میں ہے اور جسمانی امراض کی بھی شفا قرآن میں ہے۔ ایک وقت کے بادشاہ نے بہت سے حکیم طبیب اور ڈاکٹروں سے علاج لیا، فائدہ نہیں ہوا، تو اس وقت کے عالم، وقت کے بادشاہ کے مشیروں نے کہا کہ بھلا کسی مولوی صاحب سے دم درود کرا لیں۔ کہا ٹھیک ہے، کروا لیں۔ تو حضرت آئے، انہوں نے قرآن پڑھا، دم کیا، بادشاہ نے نذرانہ دیا، چل پڑے۔ تو اس کے گھوڑے کو اس وقت کے مشہور ابو علی سینا، فادر آف میڈیکل، بانا طبیبوں کے بھی باپ، اس نے روکا اس کو، بھائی سمجھا، نہ تو نے کوئی دوائی کھلائی نہ کچھ کیا، ایسے ہی پھونک ماری اب شفا ہو جائے گی؟ ہم نے پورا علاج کیا، فائدہ نہیں ہو رہا، تیرے طرف سے کیسے فائدہ ہوگا؟ تو اس وقت کے عالم بزرگ نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، راستہ چھوڑو، میں جا رہا ہوں۔ ان کو اور غصہ چڑھ گیا، تیش آ گئی کہ نہ ہماری بات سنی نہ ہمیں مطمئن کیا۔ کہا جاؤ، بادشاہ کہا اس کو روکو، اس سے منازعہ کرنا ہے۔ بادشاہ نے اس عالم کو بلوایا، کہا حضرت اگر جواب نہیں دینا تھا تو نو کمنٹس چلے جاتے، ڈانٹ ڈپڑ کیوں تھی کہ جاؤ میرا ٹائم نہ خراب کرو، بھاگو، میں جا رہا ہوں۔ تو اس عالم نے کہا صحیح ہے، میں نے صحیح کہا ہے۔ کہا میں نے انہیں لاٹھی تو نہیں ماری، نہ ڈنڈا مارا ہے، صرف یہ لفظ کہیں کہ جاؤ میرا ٹائم نہ خراب کرو، میں جا رہا ہوں۔ اس لفظوں میں انہیں اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ وہ آپ کے دربار میں آئے اور انہوں نے شکایت کری کہ اس کو روکیے، یہ ہم سے بحث مباحثہ کرے، ایسے کیسے جا رہا ہے۔ اللہ کے قرآن میں تاثیر نہیں ہوگی جو میں نے پڑھا ہے، ان لفظوں میں شٹ اپ، خاموش ہو جا، نکل جا۔ آپ کہتے ہیں اس مولوی صاحب کے پاس میں جاؤں گا ہی نہیں، اس نے مسجد میں بڑی مجلس میں سامنے مجھے کہا کہ نکل جا، آئندہ نہیں آنا۔ مولوی صاحب نے نہ ڈنڈا مارا نہ گولی ماری، یہ لفظ بڑے مجمع میں کہا کہ آئندہ میں تیرا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، نکل جا، کبھی مولوی صاحب کو ملنے کے لیے تیار نہیں۔ ان لفظوں میں اثر ہے، اللہ کے کلام میں اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کے کلام میں اثر ہے، شفا ہے، روحانی مرض بھی اسی سے حل ہوتے ہیں اور جسمانی مرض بھی اس سے ہوتے ہیں، اور رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم صرف نقصان اور خسارے میں، ٹوٹے اور گھاٹے میں پڑیں گے اور انہیں کچھ نہیں پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت میں جو احادیث بیان فرمائی، اور قرآن کی فضیلت میں خود قرآن ہی بہت ہے، اگر ہم بیان کریں تو یہ وقت ہمارے لیے ناکافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے کلام مقدس کی فضیلت تمام کلاموں پر، تمام کتابوں پر، تمام باتوں پر، کفضل اللہ علی خلقہ، جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق اللہ کے قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ہے۔ اللہ تمام مخلوق سے اعلیٰ، بلند و برتر ہے، بالا ہے، وہ سب اللہ خالق ہے، پوری مخلوق سب یہ مخلوق ہے، تو اللہ کے کلام کی فضیلت بھی ایسے ہی تمام کلاموں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ فرماتے ہیں علماء کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پریشانی لاحق ہوئی کہ توریت کو اس کی قوم نے تبدیل کر لیا،
इंजील को ईसाइयों ने तब्दील कर लिया, जबूर को तब्दील कर लिया, आसमानी किताब, इल्हामी किताब अपनी कैफियत पर न रही, वो रद्द बदल हो चुके। कुरान का क्या होगा? मेरे बाद शायद कुरान भी महफूज नहीं होगा। अल्लाह को अपने प्यारे हबीब की ये परेशानी भी पसंद नहीं। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा लिया कि दिया मैंने तुझे है, हिफाजत मेरे जिम्मे है। दुनिया लाख चाहे कुरान को बदल नहीं सकती, दुनिया लाख चाहे कुरान में रद्द बदल नहीं कर सकती। एक नुक्ते की, हरफ की, एराब की, हरकत की, सकनात की तब्दीली नहीं कर सकती। अल्लाह ने फरमाया हमने नाजिल किया, हिफाजत भी हम करेंगे। जिसकी हिफाजत खुदा करे उसे कौन कुछ नहीं कर सकता। अगर इस कुरान को हम नहीं पढ़ेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक, कुरान या तो तेरे लिए हुज्जत है, तेरी सिफारिश करेगा, जन्नत में जाने का जरिया होगा, कब्र में एक खूबसूरत इंसान बनकर तेरे साथ रफीक और हमनशीन होगा, तेरा दोस्त बनेगा, और अलैक या तुझ पर फरियादी बनेगा, तेरे खिलाफ होगा। वो कैसे? न पढ़े कुरान को, कुरान का हक अदा न किया, नहीं कुरान वाली बात को सुना, न कुरान वालों की बात को सुना, न मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ा, न कुरान पढ़ने वालों की बात सुनी, तो वो तुझ पर फरियाद करेगा। अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया हुजूर के फरमान को, फरमाया वकाल रसूल या रब्बि इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल उस दिन फरियादी बनेगा। भाई रसूल हुजूर के लिए अल्लाह ने फरमाया कि आकाए नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे, या रब्बे, ए मेरे अल्लाह, इन्न कौमी, बेशक ये मेरी कौम, हाज़ल कुरआन महजूरा, इस कुरान को छोड़ दिया, कुरान के अहकाम को नहीं माना, कुरान की बात को सुनी सुनाई कर दी, कोई तवज्जो नहीं की। अब इनकी पकड़ कर, अगर यहाँ कोई मजबूत फरियादी हो तो बंदा जान नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह का रसूल खातमुल अंबिया अगर फरियादी हो तो हमारी जान छूटेगी? नहीं छूट सकती। यहाँ के पावरफुल बंदे से हम लड़ नहीं सकते, उसके सामने हम खड़े नहीं हो सकते, हमारी कांपें टांगती हैं या टांगे कांपती हैं। अल्लाह का हबीब जब फरियादी होगा तो हमारा क्या असर होगा? यहाँ के चौधरी रईस और मुजेरी मलक मियाँ के सामने हम नहीं खड़े हो सकते, अल्लाह के हबीब के सामने जब वो फरियादी हो तो हमारी कहाँ दाल ही नहीं गले, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों कुरान को तो पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, कुरान वालों के साथ बैठना चाहिए, कुरान को वक्त देना चाहिए। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान का हक है कि साल में 2 मरतबा खत्म करे, नहीं तो ये कुरान का हक रह गया। कुरान के तो हुकूक है, कुरान पर ईमान लाए, कुरान को पढ़े, कुरान की बातों पर अमल करे, कुरान का अदब करे, और कुरान के हुक्म को मुंह न दे, मुंह न फेरे। ये कुरान के हक हैं हम पर, ऐसे नहीं कि छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दक्किर, हमने कुरान को बहुत आसान कर दिया समझने वालों के लिए, नसीहत हासिल करने वालों के लिए, है कोई गौर विचार करने वाला? कहीं हम कैसे पढ़े? हम बूढ़े हो गए, हम नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ने कहा बहुत आसान है, तुम्हारी जिबानों से, कौमों से, बातों से कुरान बिल्कुल आसान है, कोई गौर फिक्र करे तो आसान है। आमी से आमी बंदा, बूढ़े से बूढ़ा बंदा याद कर लेता है। और फरमाया कुरान इतना रौब और दबदबे वाला है, लव अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। अगर हम ये कुरान जबल पर उतारे, जो जबल भी अल्लाह के खौफ और खशियत से ज़रे ज़रे से हो जाए, ज़रे पुरज़े हो जाए, जबल भी कुरान का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन अल्लाह ने हुजूर के सीने पर उतारा तो उस तवज्जो से हुजूर के सीने से फिर ठंडा होकर हम पर पहुंच गया। जैसे डायरेक्ट 320 या बड़ी 11,000 वोल्टेज से लाइट हमारे आए तो हमारी सारी चीजें जल जाए, लेकिन वो फिर मीटर में, खंबे से मीटर में आती है तो उसका थोड़ा असर कम पड़ जाता है। डायरेक्ट कुरान हम पर उतर जाए, हम नहीं खड़े हो सकते। कुरान हुजूर के सीने ने वो बोझ बर्दाश्त किया, उम्मत का गम बर्दाश्त किया, फिर हमें दिया, हम बर्दाश्त के काबिल हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल कुरआन वस्तहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहु बिल जन्नत व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहले बैतिही कुल्लुम वजबत लहुमुन नार। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा
वस्तहल्ल हलाल, कुरान के हलाल को हलाल जाना, वहर्रम हराम, कुरान ने जो हराम कहा उसको हराम जाना। तो फिर क्या होगा, अल्लाह इसके जरिए, इस अमल के जरिए उसे जन्नत में दाखिल करेगा। यहां तक नहीं, फरमाया वशफ़उ फी अहले बैतिही फी अशरत मिन अहले बैतिही कुल्लुहुम वजबत लहुमुन नार। कुरान पर अमल करने के लिए, आमिलीन कुरान बनने के लिए अल्लाह उसके घर वालों में से 10 की शफाअत करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उन्हें जन्नत में जाने का जरिया बनेगा। कुरान पर अमल ये करे, ये खुद शाफी बन जाएगा, किसी को जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिर आयतिन तुक़रउहा। हुजूर ने फरमाया कि साहिब कुरान को कहा जाएगा, हाफिज कुरान को कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा, इधर जन्नत के मंजिलों में ऊपर चढ़ता जा, तेरी आखिरी मंजिल वही है जहां तेरी आखिरी आयत। कुरान की ये फजीलत है भाई, और कुरान ही के लिए हम जिंदा हैं। अगर कुरान उठ जाए दुनिया से, जमाना खत्म, दुनिया खत्म। कुरान की वजह से हम पर ये हयात है। अगर कुरान हमसे चला गया तो कुछ नहीं बचा। ये कुरान वालों पे लिए मसाइल, हुक्मरानों को कुरान वाले नहीं चाहिए। मदारिस पे सख्ती है दिन ब दिन, रजिस्ट्रेशन कराओ, ये करो। भाई मस्जिद में कुरान क्यों पढ़ा रहे हो? मस्जिद में मदरसा रजिस्ट्रेशन है, हमारे यहाँ पूछने आए। हम तो कुरान वाले, मसाजिद मदारिस वाले उलमा बैरून मुमालिक, इस्टेब्लिशमेंट और यूरोप से खतरा नहीं जितना अपने हुक्मरानों से खतरा है। दीनी मराकिज और खानकाह पर जो तकलीफें आ रही हैं, उन पर जो इनकी है, इस्लामी अहकाम वालों पर जो है, दूसरों पर नहीं। 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तहसन फैसला जो अच्छा उसमें था, एक कि मुल्क में रिबा सूद के मुकम्मल खात्मे के लिए एक मुअय्यन मुद्दत मुकर्रर की गई, जो 31 दिसंबर 2027 को खत्म हो रही है, और 1 जनवरी 2028 से सूदी निजाम को मुकम्मल खत्म करके इस्लामी मालियाती और बैंकारी निजाम को नाफिज करना था। इस सिलसिले में स्टेट बैंक से तमाम बैंकों को हिदायत दी गई थी कि वो मज़कूर मुद्दत में अपने तमाम माली मामलात सूद से पाक कर ले, लेकिन इस दौरान इस मुबारक अमल को सबूताज करने के लिए और रुकावटें डालने का सिलसिला शुरू हो गया है। बावसूख जराए से ये मालूम हुआ है कि बड़े बैंकों की अक्सरियत को इस्तिस्ना दे दिया गया है। वजह इस्तिस्ना ये बताई गई कि बैनुल अक़वामी मुआहदात का तकाज़ा है। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के आइन को बरतरी हासिल है, और जो कोई गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान में काम करती है वो पाकिस्तान के ताबे होगी, और पाकिस्तान में के ताबे होगी। इस सूद का कारोबार अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग जारी रखने के मुतरादिफ है। ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि दस्तूर में सूद खत्म करने की जो मुद्दत मुकर्रर की गई है, उसको लफ्जन व मानन मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। अमेरिका के जोर पर पाकिस्तान ये पर डाला जाता है कि आप अफगान फलस्तीन जाएं और फलस्तीन के मुजाहिद इन पर मारे। हालांकि पुराने दौर में जनरल ज़ियाउल हक जिस ब्रिगेडियर था, उसने उर्दून से फलस्तीनी मुसलमानों पर हमले किए थे। आज भी वो फलस्तीन वाले नहीं भूले, दोबारा ये गलती नहीं करनी। पुराने दौर में अमेरिका के कहने पर इमारत इस्लामी अफगानिस्तान पर फिजाई कंट्रोल के लिए अड्डे पाकिस्तानी हुकूमत ने दिए थे। आज भी वो मजालिम, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाना, ये अमेरिका और यूरोप की जंगें हमारी नहीं है। इसीलिए हम सब पर लाजिम है कि मदारिस पर जो आवाज उठेगा कि भाई मदारिस को कौमी धारे में लाओ, तुम्हारी अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल किस माहौल में है? कोई किसी दुरुस्त तरीके में जाओ। कॉलेज में क्या तालीम है आपकी? स्कूलों में क्या है? खून रेजी, कत्ल गारत पढ़ाने वाले कैसे हैं? क्या आपको पता नहीं है? यहाँ यूनिवर्सिटियां नहीं है? नहीं हमें मालूम कि आप क्या किस तरह पढ़ा रहे हैं? क्या आपकी अखलाकी हालत है? आपके फंड्स जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में है, अरबों खरबों रुपए आपने हजम कर लिए, वहां कोई पानी की मुयस्सर सहूलत नहीं है। आप मदारिस को संभालोगे जहाँ हजारों तलबा पढ़ते हैं, अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटियां तो संभल ही नहीं जाती। मदारिस पे इनका जो है हमेशा जोर होता है ताकि हम उलमा के आवाज को दबा सके। आप न दबा सकोगे। कोई कानून गैर इस्लामी होगा आप उसे नहीं मानेंगे, हम उसको जूते के नोक पर रखते हैं। तुम्हारा जो कानून है कि 18 साल की कम उम्र की लड़की का निकाह न पढ़ो, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उम्मत इस्लामी है, इससे पीछे नहीं हटेगी। जितना चाहे तुम कर लो, इस्लाम की फितरत में बुलंदी है, जितना दबाओगे वो उल्टा बढ़ेगा। इस्लाम की फितरत में बुलंदी है, झुकाव नहीं है। कुर्बानी हो गई
ایک جان گئی دوسری جان تیار ہو جائے گی. دعائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا